Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine students. Today I will teach you English unit number 10, journeys, introduction of the unit and paragraph number 1, 2 and 3. Students, now let us start. Topic journeys, Urdu मानिए सफ़र. The events in crossing the river below took place around 1800. दरिया अबूर करना के वाक़यात नीचे जो बयान किए गए हैं तकरीबन 1800 में पेश आए and are described in the autobiography of the 19th century Russian writer सिराज अक्साकोव और इन्हें 19वीं सदी के रूस के मुसन्निफ सिराज सकाफोव की आप बीती में बयान किया गया है. यानी ये वाक़यात 19वीं सदी के रूस के मुसन्निफ सिराज अक्साकोव की आप बीती में बयान किए गए हैं. द फैमिली सर्वेंट्स वर ब्रिंगिंग 9-year-old सिराज. ख़ानदानी मुलाजमीन 9 साल के सिराज को ला रहे थे. होम फ्रॉम स्कूल फॉर द समर हॉलीडेज इन आ हॉर्स ड्रॉन कैरिज. स्कूल से गर्मियों की छुट्टियों के लिए घोड़े की बग्घी में घर 9 साल के सिराज को ख़ानदान के मुलाजमीन ला रहे थे. When they had to cross the कामा रिवर, जब उन्होंने कामा दरिया अबूर किया. ऑटोबायोग्राफी उर्दू में मानिए आप बीती. क्रॉसिंग द रिवर दरिया को अबूर करना. पैराग्राफ नंबर 1. वी केम इन द आफ्टरनून टू द बैंक ऑफ द कामा रिवर. हम दरिया कामा के किनारे पर दोपहर को पहुँचे. अपोजिट द विलेज, गांव के बिल्कुल सामने वाक़ है. वेयर द रिवर वाज क्रॉस्ड ड्यूरिंग द समर, जहाँ से मौसम गर्मा में दरिया को अबूर किया जाता था. ऑन द बैंक, किनारे पर. देयर वर 3 लोडेड कार्ट्स, 3 लदे हुए छकड़े थे. विद देयर ड्राइवर्स वेटिंग टू क्रॉस, अपने ड्राइवरों के साथ अबूर करने के लिए या पार करने के लिए मुंतज़िर थे. एंड आ ग्रुप ऑफ पीसेंट्स विद बास्केट्स फुल ऑफ बेरीज, और मज़ारों की एक टोली बेरियों की टोकरियों के साथ खड़ी थी. विच दे वर कैरिंग होम टू द विलेज, जो कि वो गांव अपने घरों को ला रहे थे. नो फेरी मैन वाज टू बी सीन, कोई माजी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कोई मलाह दिखाई नहीं दे रहा था. आफ्टर सम डिस्कशन, कुछ बहस के बाद. द पीसेंट्स एंड माई सर्वेंट्स डिसाइडेड टू टेक अस अक्रॉस देमसेल्व्स, मज़ारों और मेरे मुलाजमीन ने खुद हमें पार ले जाने का फ़ैसला किया. वन ऑफ द पीसेंट्स, एक मज़ारे ने. वन ऑफ द पीसेंट्स सेड, एक मज़ारे ने कहा. ही हैड बीन आ फेरी मैन फॉर सम ईयर्स, कि वो कुछ सालों तक माजीगिरी करता रहा था. एंड ऑफर टू टेक द स्टेयरिंग, और उसने रुख बदलने वाले चप्पू थामने की पेशकश की. नेक्स्ट पेज नंबर 168, पैराग्राफ नंबर 2. दे पिक्ड आउट द बेस्ट फेरी बोट, उन्होंने बेहतरीन कश्ती चुन ली. एंड द 3 कार्ट्स,
with the horses, اور 3 چکڑے گھوڑوں کے ساتھ. My carriage, میری بھگی. And 3 horses, اور 3 گھوڑے. And the women with their baskets, اور خواتین اپنی ٹوکریوں کے ساتھ. were all put on board, سب کو سوار کر لیا گیا. The man who said he was a ferryman took his place at the steering, اور وہ آدمی جس نے کہا تھا کہ وہ ماجی گیری کرتا رہا تھا رخ بدلنے والے چپو کی جگہ سنبھال لی. The peasants and my servant Avian, whose courage and strength made him worth 10 men, took the other oars. مزارے اور میرا ملازم ایویان جس کی ہمت اور طاقت 10 آدمیوں کے برابر تھی دوسرے چپو سنبھال لیے. Although the crossing place was directly opposite the village, اگرچہ عبور کرنے کی جگہ گاؤں کے بالکل سامنے تھی. It was necessary to row upstream for more than a verst before turning across the river. اگرچہ عبور کرنے کی جگہ گاؤں کے بالکل سامنے تھی لیکن دریا کو پار کرنے کے لیے مڑنے سے پہلے مخالف بہاؤ میں تقریباً 1 ورسٹ یعنی کہ 1 کلومیٹر کشتی کو لے جانا ضروری تھا. This would prevent the boat from being carried down past the landing place on the other side by the current of the angry river. اس طرح کشتی کو وسیلے دریا کاما کے زد میں لا کر اترنے کے مقام سے دور کشتی بہہ جانے سے محفوظ رہتی. یعنی اس طرح کشتی کو دریا کاما کے وسیلی لہروں کی زد میں لا کر اترنے کے مقام سے پرے کشتی بہہ جانے سے محفوظ رہتی. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3. A black cloud was rising quickly, ایک سیاہ رنگ کا بادل تیزی سے اٹھ رہا تھا. And covering the horizon, اور افق پر چھا رہا تھا. But the boat was moving very slowly, لیکن کشتی بہت آہستہ حرکت کر رہی تھی. To save time, وقت بچانے کے لیے. As the storm came nearer, جیسے طوفان نزدیک آ رہا تھا. The men rowed only some of the necessary distance upstream, آدمیوں نے مخالف سمت میں صرف تھوڑا سا ضروری فاصلہ طے کیا. Then they murmured a quick prayer, پھر انہوں نے تیزی سے دعا مانگی. And began to row straight across, اور بالکل سیدھی کشتی لے جانے لگے. But before we had reached the middle of the river, لیکن اس سے پہلے کہ ہم دریا کے وسط میں پہنچتے. The heavens grew black, افق سیاہ ہوتا گیا. The reflection of the water still blacker, اور پانی کا عکس بھی سیاہ تر ہوتا گیا. And a storm broke over us with thunder and lightning and a hurricane of wind, اور
गरज, चमक और तूफ़ानी क़ुव्वत की ज़ोरदार हवा के साथ तूफ़ान हमारे सरों पर टूट पड़ा। यानी तूफ़ान जो है हमारे सरों पर गरज, चमक और तूफ़ानी क़ुव्वत की हवा के साथ टूट पड़ा। आवर स्टेयर्समैन ड्रॉप्ड हिज और इन आ पैनिक, हमारा रुख मोड़ने वाला, कश्ती का रुख मोड़ने वाला जो आदमी था उसने घबराहट के आलम में अपना चप्पू गिरा दिया। एंड कॉन्फेस्ड, और एतराफ़ किया, ही वाज नॉट आ फेरी मैन एट आल, कि वो माझीगिरी बिल्कुल नहीं करता रहा था। एंड कुड नॉट स्टेयर, और कश्ती का रुख मुतय्यन नहीं कर सकता। द वुमेन रेज्ड आ पायर्सिंग श्रीक, ख़वातीन ने ज़ोरदार चीख मारी। एंड हॉरर फेल अपॉन अस, और हम पर दहशत तारी हो गई। आई वाज सो फ्रैटन्ड, मैं इस कदर डरा हुआ था। दैट आई ट्रेम्बल्ड, कि मैं कांपने लगा। एंड कुड नॉट अटर आ साउंड, और एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाल सका। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 की रीडिंग एंड ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। अब आप पैराग्राफ नंबर 1, 2 एंड 3 के वर्ड्स, मीनिंग्स और ग्रामर नोट करें। इसमें सबसे पहले आपने वर्ड पढ़ा है क्रॉस्ड, उर्दू में यानी अबूर करना, और ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है पीसेंट्स, उर्दू में यानी मज़ारे, और ग्रामर है प्लूरल नाउन। नेक्स्ट वर्ड है फेरी मैन, उर्दू में यानी मलाह या माझी, और ग्रामर है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयरिंग, और उर्दू में यानी रुख मोड़ने वाला चप्पू, और ग्रामर है कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट वर्ड है कैरिज, उर्दू में यानी भग्गी, ग्रामर है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है लैंडिंग प्लेस, उर्दू में यानी उतरने का मकाम, ग्रामर है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस्ड, उर्दू में यानी एतराफ़ करना, और ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है मरमेरिड, उर्दू में यानी दुआ मांगना या बड़बड़ाना, ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल्ड, उर्दू में यानी कांपना, और ग्रामर है वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है पैनिक, उर्दू में यानी घबराहट का आलम, और ग्रामर है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है हॉरर, उर्दू में यानी दहशत, और ग्रामर है नाउन। नेक्स्ट वर्ड है श्रिक, उर्दू में यानी चीख, और ग्रामर है नाउन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.